Yeah, good evening, student. Am I audible? Yes, all of you. Yes, ma'am. Okay, okay. Good evening. Good evening. See here, we have started with the, I think, first model we have started. This is what the textbook. If you really want to purchase, then purchase. Otherwise, no need to purchase it also. Okay, that everything I will going to provide you. And this is what the syllabus we have started with the first module, human resource management. Okay, so there we have seen the concept of HRM, and then what is traditional HRM and the strategic HRM. I think what are the objectives of HRM is also over. Let me see. Okay, this part we have seen concept of HRM, concept of strategic HRM, difference between traditional and the strategic HRM. Then the objectives of HRM was also over. Organizational structure of HRM, yes, ये भी हो गया था. उसके बाद में क्या है? Changing role of HR manager. I think this one we have not seen. What do you all say? ये नहीं हुआ था लगता है अपना ना. Changing role of HR manager. Yes, ma'am. Okay, let's start here. This is page number. Okay. See what is that? Now here we will going to study like HR manager, like whatever the function or whatever the activities is doing, how it is changing day by day. That we will going to see. The 21st the 21st century has posed challenges to HR manager on account of globalization, technological changes, diversity in workforce, growing expectation of employees, and intense competition. Therefore, HR manager need to play proactive role in handling the HR challenges. So, what exactly the challenges the HR need to face, and how is basically tackling all those issues, that we will going to say it now. The first one here, management of change. Nowadays, a number of change are taking place in every organization. Changes are influenced by internal and the external factor. The internal factor responsible for organizational changes include changes in management philosophy, management policy, changes in employees' expectation, expansion and modernization. The external factor that influence organizational change include the changes in government policy, changes in competitor strategies, growing expectation of customer. Okay. See, in short, if I have to say कि like management of change, मतलब क्या होता है यहाँ पे? You can see nowadays there is always a change for the policies. Okay, there are always changes in the policy making. Then again, government are changing their policy. As for that, even management need to act, and they also need to have the changes into their policy. एक मिनट, अरे स्पीकर बंद करना. ठीक है. So whatever changes is being happening, as per that the HR also have to keep a record of that कि like track रखना पड़ता है, उतना update रहना पड़ता है, what kind of a changes are happening in the economy, and as per that he also have to implement all those changes into their companies also. ठीक है. अगर अगर रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम लोग को देना है तो वी कैन टॉक अबाउट द कोविड-19 सिचुएशन. सो कोविड-19 के टाइम पे like past those who are coming to the nation essential commodities, ठीक है, तो उनके उनसे रिलेटेड जो भी कंपनीज थे, these people need to work as usual, like they need to go to the office and they need to do the work from their office only. उनके लिए वर्क फ्रॉम होम अलाउड नहीं था. तो उसके लिए व्हाट वाज द बेसिक चैलेंज दैट एचआर फेस ड्यूरिंग दोस टाइम. तो एचआर का रोल था कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम निकाला हुआ है, गवर्नमेंट कौन से साइड से वहाँ पे पास क्रिएट करके दे रहा है लोगों को, और क्या उसका मेन रूल्स और रेगुलेशन है. That everything the HR need to keep a record of that, keep a track of that, and as per that requirement he has given the pass to their employees, and उसके according फिर उनका कंपनी का काम स्मूथली चालू रहा during this lockdown period also. Even इतना ही नहीं थी, sometime like it was not possible for everyone to use the public transport. तो उसके लिए कंपनीज ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, कंपनीज ने अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करके करवा के देना चाहिए.
सो दैट वाज द मेन चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द एचआर मैनेजर। तो ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को कोविड-19 का सिचुएशन बताया। तो इस तरीके से देर आर मेनी थिंग्स, मेनी चेंजेस आर हैपनिंग इनटू द पीएफ स्कीम। देन अगेन वी कैन से मैटरनिटी बेनिफिट में चेंजेस होता रहता है, ग्रेजुटी कैलकुलेशन में चेंजेस होता रहता है। सो दैट ऑल थिंग्स वी नीड टू, दैट एचआर हैज टू कीप अपडेट ऑन दैट, एंड उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे अपने कंपनीज में वो इम्प्लीमेंट करना रहता है। Now we will talk about the strategic partners. HR managers need to play the role of strategic partner in the organization. The objective of the HR department must be aligned with that of the organizational objective. अच्छा देखो, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एचआर को काम करना है एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट वाज द ट्रेडिशनल एचआरएम एंड द स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो ट्रेडिशनल एचआरएम में जो हमेशा होता आ रहा है वैसे, लेकिन स्ट्रेटेजिक एचआरएम मतलब क्या, कि जो करंट चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है, कुछ चेंजेस करना पड़ता है, वो सब एचआर के हाथ में रोल रहता है। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर इट मीन्स if suppose HR डिपार्टमेंट जो रहता है, HR में also there are different different kinds of activity, different kinds of function, और उसके अकॉर्डिंग HR में भी स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट होते हैं। कि जैसे कि कोई एक HR का सेक्शन बस रिक्रूटमेंट हैंडल करेगा, कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से ध्यान देगा, कोई ओनली परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करता रहेगा, और कोई एक जस्ट काउंसलिंग के लिए रहेगा। सो दिस वे, इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे द HR डिपार्टमेंट हैज आल्सो बीन डिवाइडेड। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब जो जहाँ पे जैसे कि अगर रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेंजेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एचआर को एक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि पहले जैसे नॉर्मल बीकॉम विल बी प्रेफरेबल, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को बीकॉम के साथ में उसके उसके साथ में ये भी एडिशनल कोर्स उसने पर्सन ने किया हुआ रहना चाहिए, देन ओनली वी विल गोइंग टू रिक्रूट इट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट बनाना, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करना। और जैसे रही बात कॉम्पेंसेशन की, सैलरीज की, तो मैनेजमेंट कितना अप्रूव कर रहा है, तो एक एचआर उसके ऊपर अपना सजेशन देगा कि कितना होना चाहिए करके इंक्रीमेंट, एंड देन एज पर दैट अगेन वो इंस्ट्रक्शन देना अकाउंटेंट को कि इतना इतना इंक्रीमेंट ये पर्सन का करना है। सो दैट ऑल डिटेल्स दे नीड टू डू। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब क्या, कि जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग एचआर मैनेजर को एक्ट करना रहता है। Now the third point here, managing workforce diversity. See what is there in the managing workforce diversity. Nowadays, workforce in organization has become diverse. Workforce in organization comes from different states, regions, and even countries, and belongs to different age group, religion, etc. Organizations are becoming increasingly cosmopolitan. In large organizations, employees belong to different states, follow different religions, and speak different languages. There is a diversity in terms of demographics such as age, gender, and even the education level. There are also differences in terms of values, attitudes, social behaviors, and expectation. Okay, student, now you tell me, अगर आप एक HR करके काम कर रहे हो, और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन, तो उसके लिए आप लोगों का मतलब एचआर का क्या यहाँ पे रोल रहेगा? टेल मी। एचआर विल बी लाइक, जैसे कोई महाराष्ट्रियन एचआर ही है, और अगर वो ऐसा आपको दिखता है कि वो कंपनी में जस्ट मराठी लोगों को ही प्रिफर करता है, उनके साथ ही वो अच्छा रिलेशन अच्छे से बात कर रहा है, बाकी लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग उसके बारे में कंप्लेंट करोगे या नहीं करोगे आपके बॉस के साथ? यस करेंगे मैम। ना, बिल्कुल करेंगे मैम। ओके। सो यहाँ पे क्या होता है मेन रोल, कि एचआर को ये सारी चीजों का हैंडल करना पड़ता है। दो द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एज, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको बिहेव करना पड़ता है उनके साथ में। ओके, और जैसे एक एक एग्जांपल के फॉर्म में देना है, तो वी कैन से कि कल्चरल एक्टिविटीज, वहाँ पे वो सबके कल्चर, जैसे कि वो महाराष्ट्र नहीं करके वो मराठी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने के लिए कहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई मुस्लिम है या फिर कोई क्रिश्चियन है, तो उनके भी फेस्टिवल्स को उसने उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके, सो दैट वे ही शुड मेक देम रियलाइज कि कोई अलग नहीं है, हर एक का जो भी कल्चर है उस सबको हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पे बात होनी चाहिए, और वैसा वहाँ पे एनवायरमेंट क्रिएट करने का जो रोल रहता है, दैट इज विद द एचआर ओनली। ठीक है, इवन ऐसा एक रहता है कि बहुत सारे कंपनीज में इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब कंपनीज में ही नहीं, हर जगह पे पॉलिटिक्स होता है।
कलीग कलीग में पॉलिटिक्स होता है कि जानबूझ के किसी को कैसे नीचा दिखाना है, या फिर काम कोई और करता है, कोई और क्रेडिट लेके जाता है। सो दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आर हैपनिंग। ओके, तो ये पॉलिटिक्स के टाइम पे भी उसको वहां पे क्या करना चाहिए, दैट ही शुड नॉट लुक एट फ्रॉम विच बैकग्राउंड दे आर कमिंग। उसको बस यही ध्यान देना चाहिए कि कौन कहाँ पे सही है करके। ओके, एंड एज पर दैट ओनली ही हैज टू टेक अ डिसीजन। तो यहाँ पे मेन चीज क्या होती है कि उसने हर रिलीजन को, हर बैकग्राउंड के लोगों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी बायस विथ एनी ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल। ओके, दिस इज व्हाट द मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कम्स। ये उनके लिए चैलेंज रहता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग एथिकल इश्यूज इन एचआरएम। देखो, द टू मेजर एथिकल इश्यूज इन एचआरएम इंक्लूड सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस रहता है कि अगर कुछ ऐसा रहता है कि वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट जैसा बात रहेगा, या फिर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्कर्स के बीच में, तो वो नहीं होना चाहिए करके उनके पास क्या चैलेंजेस रहता है। देखो, यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि एचआर के लिए क्या चैलेंज होता है, वो उसको कैसे टैकल कर सकता है। See, sexual harassment of women employees at the workplace has become one of the biggest challenges for Indian managers. There are genuine cases of sexual harassment of women employees at the workplace, but at times there are fake cases to falsely implicate the male members of the organization. Therefore, the management is in the dilemma to deal with sexual harassment cases. तो जैसे कि क्या मतलब क्या टाइप के सेक्सुअल हरासमेंट हो सकते हैं? फिजिकल कॉन्टैक्ट और द एडवांस, देन अगेन a demand or request of sexual favors, then again making sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of sexual nature. The government of India has introduced the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 to protect the women from the sexual harassment at the workplace. The HR manager needs to play an important role in implementing the act. Organization with 10 or more employees need to set up an internal complaints committee at each office or branch to inquire and report regarding sexual harassment of women at workplace to the management or to the district डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एज द केस में भी। देखो, यहाँ पे मेन मतलब आप लोग बोले कि मैम लेकिन वो क्या स्ट्रेटेजी कर रहा है? स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी अगर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी रूल बनाया हुआ है कि जिस भी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है तो उनको वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनाना ही पड़ता है, और उस कमिटी में सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड अगर कुछ कंप्लेंट आता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी है। सो इट इज टोटली मैंडेटरी फॉर द कंपनी एंड दैट मैंडेटरी रूल शुड नोन टू एचआर। ठीक है, अगर वो रूल जो रहेगा वो एचआर को ही पता नहीं रहेगा तो ही विल नॉट गोइंग टू फॉर्म द कमिटी। अगर वो केस बहुत आगे चला जाता है, अगर कोई लेडी लिटरली उसको कोर्ट में लेके जाती है ऐसे केसेस को, तो उस टाइम पे कंपनीज के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है that they have not created this kind of a committee and they have not taken any action against the people who did this kind of a harassment. Okay, तो इसके लिए एचआर को अपडेट रहना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या अपडेट हो रहा है करके। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, लाइक फर्स्ट सेक्शन में ही, कि दो यू हैव दे आर इन द मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एचआर बनने का प्लानिंग कर रहे हो then you should go with the at least the labor law. अगर कुछ एलएलबी नहीं कर पाओगे ना तो एटलीस्ट आप लोगों को कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स या फिर एक डिप्लोमा करके रखना चाहिए इसके अंदर, लेबर लॉस के अंदर। अगर वो भी आपके पास एक आ गया ना सर्टिफिकेट की, लाइक यू हैव डन योर डिग्री और यू हैव डन योर डिप्लोमा इन द लेबर लॉस, तो वो भी आपको सैलरी इंक्रीमेंट के लिए और सैलरी नेगोशिएशन के लिए, और एक बोलते हैं ना सीवी पे एक वेटेज होता है कि अच्छा सीवी करके, तो वो दिखाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कहीं से भी मिलता है, आई थिंक टीआईएसएस इज आल्सो ऑफरिंग द सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबर लॉ। ठीक है, पैसा थोड़ा ज्यादा है, फीस वहां पे थोड़ा ज्यादा है, बट स्टिल यू पीपल कैन प्लान फॉर द लेबर लॉज ऑल्सो। मतलब प्लान ही मत करो, ये करो ही, ऐसे दिमाग में बिठा के रखो कि इवन आप लोग ये एमकॉम के साथ भी वो लेबर लॉ का सर्टिफिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे आप लोग प्लान करो इस कंप्लीट करने के लिए। अगर मुझे कहीं से पता लगता है कि किधर हो रहा है तो मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगी कि जहाँ पे आप लोग है लेबर लॉ एटलीस्ट स्टडी करके रखोगे। ओके, ये हो गया सेक्सुअल Yeah, हरासमेंट। ma'am. Please do share. किधर है वो?
यस। Ma'am, I said please do share with us. हाँ हाँ, श्योर श्योर। मतलब मुझे जितना थोड़ा खबर है ना, ये टीआईएसएस में है, लेकिन उनका फीस बहुत ज्यादा है। तो डिप्लोमा के लिए इतना फीस, लेकिन टीआईएसएस का एक सर्टिफिकेट मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज टीआईएसएस से खुद आपको प्लेसमेंट करवा के देगा, या फिर टीआईएसएस के नाम पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज में एक्चुअली रिक्रूटमेंट हो जाता है, अगर किसी ने टीआईएसएस से कोई कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। मेरे हिसाब से कुछ 1 लाख तक का रहेगा खर्चा 1 साल के लिए। तो लेकिन अगर मुझे कहीं और जगह पे जहाँ थोड़ा सस्ते में अगर किधर है अवेलेबल, तो मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगी। लेकिन आप एक करके रखो, मतलब जरूरी है, एक एज अ मैनेजमेंट पोजीशन पे एक एचआर के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। अभी हम लोगों ने बात किया कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो एचआर को कैसे अपडेट रहना है। तो ऑब्वियसली उनको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मतलब किसी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसके ऊपर कैसे ऐड करना है, एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ एचआर ओवर देयर। ठीक है, so HR managers may play an important role to overcome the problem of workplace discrimination. The HR managers may provide suggestions and inputs to the management to overcome the areas of workplace discrimination in the interest of the employees and that of the organization. Workplace discrimination involves any distinction, exclusion, restriction, or preference made based on the race, nationality, ethnicity, religion, social class, belief, sexual orientation, age, disability, non-contagious chronic diseases, then HIV infection, or belonging to a disadvantaged category. ये सब बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। मतलब आप लोग बोले कि नहीं मैम, मतलब अभी तो सब लोग पढ़े लिखे हैं तो ये सब चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोगों का मेंटालिटी अभी भी वैसा ही है कि उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, उन एक मिनट एकदम शांत हो। उनके डिसेबिलिटी के ऊपर, अगर कोई किसी को कुछ बीमारी है, भले वो इन्फेक्शियस नहीं रहेगा, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करना, ये होता है बहुत सारी जगह पे होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? द फॉलोइंग एरियाज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट टेक्स प्लेस एट द वर्क प्लेस। हाँ, imposition of conditions such as age. Okay, recruitment and the employment। जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट करना है तो 25 to 35 ईयर्स के बीच वाले लोगों को ही लेना है। हमें मेल फैकल्टी, हमें मेल मेल ही पर्सन चाहिए, हमें फीमेल ही चाहिए करके, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। दोज हु आर हैविंग, सपोज इफ somebody is above the age of 35 and if they have the qualities also, then अगर उनको जॉब नहीं है तो उनको रिक्रूट करना चाहिए। मतलब I really don't know whether I have to share those things with you, but don't take it in a very negative way. But पता नहीं, मतलब आप लोगों ने भी ये बहुत जगह पे सुना रहेगा। There are few companies who literally say कि like they don't want any Muslim people। ये सुना है कभी आप लोगों ने ऐसा बोलते हैं करके? Yes, कभी आप लोगों ने ऐसा कभी सुना है किसी कंपनी के, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने ऐसा बोला रहेगा आपको कभी कि नहीं मेरे कंपनी No, में? ma'am, I didn't heard. ना, ऐसा होता है, और ये मैंने ना 2-3 कंपनीज के बारे में सुना हुआ है। देखो, कंपनी ओपनली डिक्लेयर नहीं करती है, हाँ, वो डिक्लेयर नहीं करेंगे ओपनली, लेकिन जो एचआर डिपार्टमेंट में जो लोग रहेंगे ना, वो लोगों का अगर किसी का थिंकिंग ऐसा रहेगा ना, तो वो लोग ऐसे पार्शलिटी करते हैं। अगर कहीं से भी, अगर आपको भी अगर कहीं से भी ऐसा भनक आती है कि नहीं ये कंपनीज में ऐसा चालू है, ऐसे वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो अगर आपको वो प्रूफ के साथ मिलता है ना, यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। ठीक है, बिकॉज बिल्कुल ऐसे अलाउ नहीं है कि किसी भी, और मतलब ठीक है, ये तो बोलने की बात हुई, लेकिन मैं आपको और एक चीज बताती हूँ कि अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है और वो कॉलेज मतलब मलयाली माइनॉरिटी का है, वैसे माइनॉरिटी का रहेगा, तो वो लोग क्या करेंगे बताए, अपने माइनॉरिटी के लोगों को ही वहां पे रिक्रूट करेंगे, वो बाकी लोगों को नहीं लेते। ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर पैनल में बहुत सारे लोग हैं, सॉरी पैनल इंटरव्यू है, वहां पे बहुत सारे लोग जॉब के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको उनके कम्युनिटी वाला कोई मिल जाता है, तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों को ही प्रीफर करते हैं। ऐसा आप लोगों ने कभी सुना है ऐसा होता है करके? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? हाँ मैम, कहीं कहीं तो होता है, ऐसा सुना तो है। हाँ, ऐसे करते हैं लोग, हाँ, कि अपने कम्युनिटी के लोगों को ही प्रेफरेंस देंगे, भले उनसे बेटर उनके पास कैंडिडेट आए रहेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग उनको नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं।
तो वैसा भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके लिए मैंने आपको कहा ना कि जो पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, एजुकेटेड है, सब पता है कि क्या है, कहाँ पे किन चीजों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन जब कम्युनिटी की बात आती है ना तो वहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और जो डिजर्व भी नहीं करता है फिर भी उनको रख लेते हैं। ऐसा है और ऐसा होता है। इवन आई एम टेलिंग यू, इवन दिस थिंग इज हैपनिंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम। इस रिटर्न अभी ये जो पहले आप लोगों ने देखा रहेगा, देखो अगर कोई जैसे एमकॉम क्लियर हो गया, चलो इसका ये एलिजिबल है, इसके अंदर वो एलिजिबल है, एक इंटरव्यू के लिए बुला लो। पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने नहीं होते थे कि हर छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स नहीं रहते थे। अभी अभी आप लोग अगर नोट करोगे कि हर छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए भी, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक एग्जाम देना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद में मेरिट में आने के बाद इंटरव्यू रहता है। लेकिन पहले कैसे सिचुएशन था, चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना तो इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली जाओ और इंटरव्यू में सिलेक्शन कर दो। लेकिन वहां पे क्या ज्यादा हो रहा था कि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज्यादा पार्शलिटी हो रहा था। पार्शलिटी मतलब मेरे पहचान वाला है, देन अगेन ये अपने ही कम्युनिटी का दिख रहा है, चलो फिर ले लेते इसको, ये सब होता रहता था। ओके, लेकिन ये सबको कम करने के लिए एक और चांस उन्होंने दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखो, लेट देम ज्वाइन विद द मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, लेकिन आपको मैं अभी भी बताती हूँ कि भले वो मेरिट बेसिस पे रहेगा, इवन इंटरव्यू अभी भी कंडक्ट किया जाता है और इंटरव्यू के लिए भी मार्क्स रहते हैं, लेकिन उसका वेटेज थोड़ा कम रहता है। इसके लिए मैं हमेशा हर एक, कोई भी मेरे सामने आता है ना कि मैम क्या करना है आगे जाके, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैसे भी करके ना रिटेन एग्जाम में जितना स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करो। बिकॉज वही तुम्हारे लिए एक टूल जैसा रहता है, एक ढाल जैसा रहता है कि अगर वहां पे स्कोरिंग ज्यादा अच्छा है ना तो इंटरव्यू में भले आपको कोई कम मार्क्स दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज एनीवेज इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू मार्क्स एंड द योर रिटन एग्जाम मार्क्स, आप लोग मेरिट में आ ही जाओगे। तो इसके लिए रिटन एग्जाम में इतना अच्छा मार्क्स मिला के रखो कि इंटरव्यू के टाइम पे भले ही कम मार्क्स दे दे फिर भी वो आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, इवन फॉर यू पीपल, ऐसे जैसे अभी तुम दोनों ही होते हैं, इजिन है देन अगेन महदून इज देयर, आप दोनों के लिए भी मैं वही सजेस्ट करूंगी। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, दो यू आर फ्रॉम एनी कम्युनिटी, नो नीड टू वरी, नो नीड टू बॉदर। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम अपने आप को एकेडमिकली एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखने का, और जब पेपर देने जाओगे उसमें एकदम जितना हो सके तो हमेशा दिमाग में यही सोच के जाने का कि नहीं मुझे कैसे भी करके है ना पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक भी जगह पे मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, उस हिसाब से स्टडी करना स्टार्ट करो। मैं आपको पूरा गारंटी देती हूँ, ये मेरा मेरा वर्ड है, आप लोग ध्यान में रखो। अगर आप इस वे से पढ़ाई करोगे और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बैठोगे ना, आपको 101% बहुत अच्छा मेरिट मिलेगा। और इंटरव्यू के टाइम पे भी अगर कोई आपके साथ पार्शलिटी करेगा तो भी कोई इशू नहीं, स्टिल यू विल गेट सिलेक्टेड इन योर गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए ऐसा प्लान करो। देखो प्राइवेट के लिए आई कैन नॉट से एनीथिंग, इट इज ऑल अबाउट देयर मेंटालिटी, वो कैसे मेंटालिटी के क्या है करके। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा होगा ही होगा कि आपको सिलेक्शन किया जाएगा। बस एकेडमिकली अपने आप को, जैसे आप लोगों ने अभी डिसीजन लिया कि हम लोग एमकॉम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्यों अच्छा डिसीजन है? बिकॉज जनरली हर एक चीज़ों के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट को डिमांड रहता है कि ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट इफ यू आर डूइंग योर एमकॉम, तो वहां पे आप पोस्ट ग्रेजुएट होकर के आपके पास एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आता है, तो कोई आपको ये बोल नहीं सकेगा कि नहीं हम लोगों को आपसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा वाला आदमी मिल गया करके। नहीं नहीं, एक मिनट, स्लोली स्लोली, कि आप लोगों से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी मिल गया करके हम लोगों ने उनको सिलेक्ट किया। नो बडी विल गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू से यू ऑल दिस थिंग। इसके लिए एकेडमिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। डोंट गेट डीमोटिवेट इफ समबडी इज सेइंग दिस एनीथिंग अबाउट योर कम्युनिटी और अबाउट एनीथिंग। जस्ट फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से करो, आपको आपका ऑब्जेक्टिव 101% मिलेगा। ओके, सो करोगे नहीं अभी से पढ़ाई अच्छे से एकदम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, We एंड will. प्लान फॉर But प्लान। ma'am, हाँ बोलो बोलो मैदून। मैम हम लोगों को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ ना कि हमको एमकॉम के बाद कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं एमकॉम होने के बाद ही आप करोगे करके, ठीक है। राइट नाउ एट प्रेजेंट ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब, भले वो कोर्ट में भी रहने दो, एज अ क्लर्क ऑल्सो यू आर एलिजिबल। भले आपको कोई तलाटी बनना है, तहसीलदार बनना है, उसके लिए आप एलिजिबल हो अभी, ठीक है। सो डोंट वेट कि नहीं एमकॉम खत्म होने के बाद में ही हम लोग अपियर करेंगे, नहीं, अभी से ट्राई करो।
और मैं अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, देखो एमकॉम का लेक्चर्स का आप लोग नोट करते रहोगे कि कितने सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है, बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग, सब लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वी ऑल अंडरस्टैंडिंग इट एज अ टीचर, वी ऑल आर कंसिडरिंग द एमकॉम स्टूडेंट, अगर कोई किसी ऐसा है किसी का अटेंडेंस कम है तो हम लोग उतना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, और नारायण गुरु में आपके लिए उतना हम लोग कंसिडर करते ही करते हैं, दो यू आर एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल और द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो टेक एन एडवांटेज ऑफ दोस थिंग, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, कोई डरने का नहीं, भले आपको 10 लोग बोलेंगे अरे ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, कोई क्लियर नहीं कर पाता है, बिल्कुल नहीं सुनने का, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ हो पाएगा, बस तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के ऊपर एकदम फोकस रखो। मैं अभी भी आपको बोलती स्टूडेंट, यू बोथ आर गर्ल्स एंड आई एम टेलिंग यू, एक बार शादी हो गई ना कुछ नहीं कर पाते हम लोग, मतलब अगर हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, तभी और भी डिफिकल्टीज रहता है। भले आप न्यूक्लियर में भी रहोगे, लेकिन अगर आपका हस्बैंड उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं आगे पढ़ पाओगे। अभी चांस है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें अगर अलाउ करते हैं पढ़ने के लिए, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और स्पेशली तुम दोनों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई नो फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फ्रॉम योर कम्युनिटी, और उनके लिए मतलब किन जॉब को प्रेफरेंस दिया जाता है, बस एजुकेशन लेना है और इमिडिएटली टीवा होने के बाद शादी की जाती है। एटलीस्ट आप लोगों के घर वाले आप लोगों के साथ वैसा नहीं कर रहे, सो टेक द एडवांटेज ऑफ इट, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत बड़े पोजीशन पे जाओ। इवन यू कैन गो फॉर द लेक्चरशिप ऑल्सो स्टूडेंट, क्योंकि मुझे जितना मैं Yeah, जानती ma'am, I want that only. I want that only, lecturership only. यस, And बिकॉज I'm मुझे interested in doing that. But yeah, but ma'am, I'm not getting the idea how to do that. सी लिसन, अभी अगर आपको लेक्चरशिप में आना है, मतलब क्या कॉलेज प्रोफेसर बनना है, मुझे कॉलेज में जाके पढ़ाना है, ओके, तो उसके लिए है ना मिथुन, Yeah, आपको ma'am. Yeah. आपको है ना नेट सेट का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन नेट सेट के लिए आई थिंक तुम अभी अपना ये थर्ड सेमेस्टर दे दो, क्योंकि नेट सेट का क्राइटेरिया ये होता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने कंसेशन दिया हुआ है कि अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है ना, तो वो बेसिस के ऊपर भी आप लोग नेट सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए, ओके। एंड वंस यू आर क्लियरिंग योर नेट एग्जाम और द सेट एग्जाम, तो वो बेसिस के ऊपर आप लोग एलिजिबल हो जाते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मेजर में आपको और एक बात बता रही हूँ कि अगर आपको इसी प्रोफेशन में आना है, अगर नेट सेट का एग्जाम सपोज क्लियर नहीं हो पाता है, बट स्टिल नॉट ओनली फॉर द मेहदू ना, इवन तहसील यू कैन ऑल्सो लिसन, ठीक है। तो यस मैम। तो आप क्या करोगे, एमकॉम में कैसे भी करके ना आपको 55% एंड अबव होने चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो 55% से अगर आपका ज्यादा परसेंट आता है, तो भी हम लोग आपको एज अ लेक्चरर करके, मतलब हम लोग मतलब नारायण गुरु में वैकेंसी रहेगा, देन ऑब्वियसली वी आर गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू आवर स्टूडेंट्स ओनली, कि अगर लेक्चरर का वैकेंसी रहेगा तो, ठीक है। लेकिन बाकी कॉलेजेस में भी प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर आपका एमकॉम क्लियर है विथ मोर देन 55%, स्टिल यू कैन ज्वाइन एज अ लेक्चरर। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा सैलरी चाहिए, तो इसके लिए आपको नेट सेट क्लियर करना बहुत जरूरी है। Yeah, ma'am, I can join because मुझे ना लेक्चरर का ना एक कॉलेज की तरफ बिहाफ पे ना लेटर भी मिल चुका है एज अ लेक्चरर। हाँ, मुझे एनआईओएस की आपने तरफ से मैम। किया है लेक्चरर में, टीचिंग किया है आपने कभी उधर? या मैम, हाँ, आई एम हैविंग दैट लेटर आल्सो विथ मी, अप्रिसिएशन लेटर आई गॉट हाँ फ्रॉम चलो, प्रिंसिपल सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मतलब ये है कि जैसे कि जो जस्ट एमकॉम क्लियर स्टूडेंट रहते हैं ना, तो उनको है ना स्टूडेंट के सामने आके उनको लेक्चर्स लेने के लिए बोलते हैं, उसको डेमो लेक्चर करके कहा जाता है। अगर स्टूडेंट का फीडबैक आपकी टीचिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, ओके। सो प्लान ओके फॉर मैम, दैट ओके। एंड डोंट गेट डीमोटिवेट फॉर एनी ऑफ द सिचुएशन। लेकिन मैदुन, फिर भी एक सजेशन है, दो यू आर सेइंग यू रियली वांट टू गेट इनटू द लेक्चरशिप, मैं फिर भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि देखो अभी भी एमकॉम होना बाकी है, अगर आपको उससे पहले किधर भी अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, सो डोंट लीव दैट अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू अपीयर फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। तो इसी ने या मेरे, मैम, श्योर, या। यस यस मैम। ठीक है, ये हो गया। मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्या बेसिस पे होता है, कि कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर होता है, एज के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कभी कभार सेम प्रोफाइल है, लेकिन एक आदमी है और एक औरत है, तो औरत को वहाँ पे कम सैलरी दिया जाएगा, वो भी सेम प्रोफाइल हैंडल करती है, फिर भी वहाँ पे वुमेन एंड मेन के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रहता है, ठीक है।
प्रमोशन के टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जो क्राइटेरिया रहता है किसी और के लिए अलग क्राइटेरिया, किसी और के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन रहता है. सो दिस आर ऑल थिंग्स आर बेसिकली हैपनिंग इनटू द वर्क प्लेस, एट द वर्क प्लेस. और उसको कैसे हैंडल करना है, क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, वो भी एक एचआर के सामने एक चैलेंजेस करके ही रहता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, challenges of employee retention. This is very important student. एम्प्लॉय को रिटेन करना. एम्प्लॉय को रिटेन करना मतलब क्या है यहाँ पे कि आपकी कंपनी में मतलब एक एचआर एक ऐसा आदमी रहता है दैट he will try his level best to motivate all the employee to do the work best and to be loyal and the honest with the company. Okay, तो इसके लिए whatever things he's planning, whatever strategy he's adopting for his employee, तो उसको वो बहुत सोच समझ के प्लान करना पड़ता है. अभी आपको एक एक ऐसी बात एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रही हूँ कि लेट रिमार्क. देखिए, कोई कोई एचआर क्या रहता है कि लेट रिमार्क्स को बहुत सीरियसली लेता है. लिटरली उन लोगों का सैलरी भी कट हो जाएगा तो भी चलेगा. this is what their point of view. Okay, but sometimes we need to, like as a HR, we have to consider some cases. अगर कोई 2 मिनट या 3 मिनट से लेट होता है, उसका बायोमेट्रिक पे थोड़ा लेट रिमार्क लगता है, तो 2-3 मिनट को तो एटलीस्ट उसने कंसिडर करना चाहिए. ओके, एकदम भी ऐसा नहीं कि बस 1 या 2 मिनट के लेट के लिए लिटरली उस दिन का हाफ डे लगा दिया. सो दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. ओके, सो एचआर को कहाँ पे लिबरल होना चाहिए, कहाँ पे ही नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, दैट ऑल थिंग्स शुड बी, मतलब बोलते हैं ना कि ही शुड बी वेरी मच क्लियर ऑन दैट कॉन्सेप्ट. जैसे हम लोग हिंदी में मराठी में बोलते हैं कि सुलझा हुआ आदमी होना चाहिए कि किन चीजों को सीरियसली लेना है, किन चीजों को ठीक है चलेगा वाला एटीट्यूड रहना चाहिए. सो वो वहाँ पे होना चाहिए. नेक्स्ट है मैनेजिंग डाउन साइजिंग. नो व्हाट इज देयर इन द डाउन. स्टूडेंट आई थिंक अपना लेक्चर ओवर हो जाएगा, रीजॉइन करना. हम लोग ये पूरा चैलेंजेस वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, इट शुड लेस देन 5 मिनट. लेस से कितना कहाँ तक कंप्लीट होता है करके. सी द नेक्स्ट वन हियर, managing downsizing. Nowadays, organizations are resorting to downsizing to become more competitive by cutting down the labor cost. Downsizing refers to the planned elimination of jobs. It involves retrenchment of surplus manpower in the organization. देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि मैनेजिंग डाउन साइजिंग. डाउन साइजिंग मतलब क्या करना रहता है कि डाउन साइजिंग का मीनिंग ये रहता है कि कंपनी कभी कभार क्या करती है कि लोगों को लिटरली निकाल देती है जॉब पे. भले उनको वहां पे जरूरत है, बट जस्ट फॉर द कॉस्ट कटिंग दे आर नॉट इवन बॉदर कि अगर किसी का जॉब चला जाएगा तो उनके घर पे जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे कंप्लीट कर पाए, घर का हालत क्या होगा. और इमीडिएटली 1 मंथ का नोटिस देके बोलते कि नहीं अभी आप निकलो करके, अभी जरूरत नहीं है आपका करके. ऐसा होता है, ये भी सुना रहेगा आप लोगों ने ऐसा होते हुए, देखा है नहीं कभी. आई थिंक लॉकडाउन में ही बहुत ज्यादा देखा रहेगा आप लोगों ने. यस, यस और नो. यस मैम, यस. ओके, तो ये सब रहता है डाउन साइजिंग, और विच इज नॉट अ करेक्ट थिंग एक्चुअली. और ये सब आपको जाना है, आपको ये कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा, लाइक वी आर फायरिंग यू. ये सब किसको हैंडल करना पड़ता है, जो मैनेजर रहेगा वो तो आके नहीं बोलने वाला है, जो वहाँ पे डायरेक्टर रहेगा कंपनी का वो तो आके नहीं बोलता है. सो दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू द एचआर ओनली. ठीक है, तो एचआर को वो सब चीजें बहुत पोलाइटली, बहुत कॉशियसली उसको हैंडल करना पड़ता है. ओके, तो उसके लिए उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब समझाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है कंडीशन, इसके लिए आपको ऐसा कहा जा रहा है. बिकॉज देर आर चांसेस कि सडनली अगर किसी को निकाला जाएगा तो कंपनी के अगेंस्ट केस हो सकता है. ओके, सो दिस वे यहाँ पे बेसिकली एचआर को हैंडल करना पड़ता है. देखो उन्होंने वहाँ पे स्कीम बताया कि डाउन साइजिंग करने का मतलब कंपनी कैसे डाउन साइजिंग करती है अपने स्कीम के थ्रू. जैसे कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, आप वीआरएस ले लो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, दैट विल बी बेटर. देन वॉलेंटरी सेपरेशन पैकेज, वो एक रहेगा. कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम किया जाएगा. सो दिस वे the company will going to implement the many scheme that will going to downsize the people here. लेकिन आप बोले कि मैम ये तो स्कीम बताया गया है करके, तो मतलब क्या यहाँ पे एचआर का ही रोल रहेगा क्या? एचआर को वैसा करना पड़ता है, उसको एक स्कीम के अकॉर्डिंग लोगों को फायर करना पड़ता है. ओके,
कि एज पर दिस पर्टिकुलर लॉ, एज पर दिस पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, वी आर गिविंग यू दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसको वो डिटेलिंग देना पड़ता है। ऐसे ही तुम लोग किसी को बोल नहीं सकते नहीं मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तू पसंद ही नहीं है, ऐसा बोल के नहीं होता है। यू हैव टू गिव द रीजन कि क्यों ऐसा कंपनी कर रहा है करके, so that all this matter has to be handled by the HR, and this is one of the biggest challenge in front of the HR here. Okay, then the next one here, challenges for corporate restructuring. Okay, this is a quite big challenge here. See, restructuring मतलब यहाँ पे corporate restructuring मतलब exactly क्या होता है? In the recent past, there is a trend of corporate restructuring due to acquisition and mergers. A number of companies worldwide are coming together by way of merger or joint venture in order to consolidate their strength and to take advantage of opportunities of global trade. Due to the growing trends of takeovers and the merger, employees are under constant tension, pressure of future events relating to their jobs such as fear of loss of job, transfer to new location, job changes, new roles and assignment, changes in the organizational structure, कॉर्पोरेट कल्चर एक्सेट्रा। ये आप लोगों ने सुना रहेगा कि बहुत सारी कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, वहां पे उनका एक्विजिशन हो रहा है करके, एंड बिकॉज ऑफ दोज थिंग, सी कोई कंपनी हम लोग को बहुत पसंद होती है कि नहीं हम मेरी कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी में काम करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ के लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, थोड़े लिबरल है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो करते करके। लेकिन सडनली आपकी कंपनी कोई ओवरटेक कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी चेंज हो जाते हैं। देन देयर यू स्टार्ट फेसिंग द चैलेंजेस एज एन एम्प्लॉय, और आप लोगों को लिटरली डिमोटिवेट होके एंड फ्रस्ट्रेट होके यू आर लिटरली लीविंग द जॉब। ठीक है, तो दिस ऑल थिंग्स हैड टू बी मैनेज बाय द एचआर। एचआर के सामने एक चैलेंजेस जैसा रहता है कि उसने क्या करना चाहिए अगर कोई कंपनी ऐसे मर्ज होती है करके। ठीक है, मतलब क्या नया लोगों का जॉब नहीं जाना चाहिए करके, तो जो नई कंपनियां आने वाली है उसके अकॉर्डिंग लोगों के अंदर क्या स्किल्स होना चाहिए, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू उसको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अपने ही एम्प्लॉय कैसे रिटेन हो गए वो नए कंपनी के साथ, दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एचआर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पे काम करना पड़ता है, नए रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से उसको वहां पे एक्ट होना पड़ता है,